Chairman of Jyoti Vidyapeeth Trust, Advisor and Chief Executive Officer of Jyoti Vidyapeeth Women's University, Sir Vedant Garg, respected Registrar Madam Dr. Hema Papila Ma'am, my colleague and President in charge of the university, Professor P.J. Raloj, all the faculty members of Faculty of Education and Methodology, and JVNs. This is the pride moment that we are gathered here, and we are going to celebrate Engineers Day. We know that today is the birthday of one of the most important architect of India, that is Bharat Ratna Sri M. Visvesvaraya. And today, on this auspicious occasion, it is our moral responsibility to remember the history of an engineer who contributed a lot to the development of the not only a particular state. Basically, he was from Mysore, you know well, but the concept he developed for the development of the infrastructure of the nation, that is a milestone in the administrative and political history of country. It is a time to recall and to remind ourselves that what is our responsibility. If you are going to be an engineer, then how you are going to contribute to the society, or how you are going to contribute to the industry. If you have any dream, then the dream should be visualized among the downtrodden people of the society and those who are sitting on the back benches of the society. If your engineering is working and thinking about that, then this is the real tributes. This is the real remembering. For your motivational speech. We observe this day. It serves a gentle reminder of the responsibilities and engineers bear on their shoulders. The profession of engineering requires not just technical skills and knowledge, but also ethics and a dedication to improving people's lives. Now, I would like to invite Honorable Advisor and CEO Sir for a speech. Budding engineers, our future engineers who will prosper and build the new India. Right? Now, on the occasion of Engineers Day, I want to express my gratitude to the already existing engineers, that how far we have come in the field of engineering. You see, in any industry you go, an engineer is somehow involved from the A to the Z of that process. For example, let's say for an industry, in extraction of a mineral, you need engineering, you need equipment which is designed by engineers. Then for building that industry, you need engineers. Then for processing the mineral, you need engineers. And then even for marketing, as we are going to learn digital marketing with ChatGPT, which is a new AI platform available to us, made by engineers. So in every field, engineers
are prospering and showing their contribution to the society. And seeing this, I am glad to see that our JVNs are going to contribute in this field as well. And I am quite happy to see this. So, CEO sir, dear madam, sir, and very respected dear students, Happy Engineers Day. हमारा भारतवर्ष पर्व और त्योहारों के लिए जाना जाता है। कल आप लोगों ने हिंदी दिवस मनाया होगा यहाँ पे। आज हम लोग इंजीनियर्स डे के लिए एकत्रित हुए हैं और आगे आने वाला कल विश्वकर्मा जयंती के लिए जाना जाएगा 17 सितंबर। आज मैं विश्वकर्मा जयंती और इंजीनियर डे को दोनों को एक साथ कोलैबोरेट कर रहा हूँ। आप में से कितने लोग हैं जो विश्वकर्मा जयंती के बारे में जानते हैं? हाथ खड़े कीजिए आप लोग। आप में से कितने हैं जो विश्वकर्मा जयंती के बारे में जानते हैं? क्योंकि इसका रिलेशन, इसका कनेक्शन आज इंजीनियर डे के साथ भी है। हम भारतवर्ष में रहने वाले लोग हैं, हमें पता होना चाहिए। अभी रिसेंटली में G20 का समिट हमारे पास यहाँ पर हुआ है और भारतवर्ष की पूरी छठा जो है संस्कृति है उसके बारे में दर्शाया गया पूरे देश और विदेश में। वर्तमान आधुनिक युग के अगर हम लोग शिल्पकार की बात करते हैं, इंजीनियर की बात करते हैं, श्रीमान एम विश्वेश्वरैया, जिनके उपलक्ष्य में, जिनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनकी याद के लिए ये इंजीनियर डे मनाया जाता है, क्योंकि उन्होंने ऐसे काम किए हैं, तकनीक को यूज में लेते हुए अभूतपूर्व परिवर्तन अगर किया जाता है किसी के द्वारा जो आज तक पहले कभी नहीं हुआ है। इसी क्रम में 2 दिन बाद 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है, शिल्पकार जयंती। एक बार मैं चाहूंगा आप लोग ताली बजाइए उसके लिए। और क्या इक्लिप्स कब होता है ये बताइए बस। बताओ ये अर्थ है, ये क्या घूम रहे हैं मून और अर्थ दोनों? तब होता है जब है ना ये राउंडिंग करके और सन के सेंटर में आता है, सेंटर पोर्शन। मतलब सन की जो आने वाली सनलाइट उसको रोक देता है, ऐसा? इसके मतलब यही तो हमें यही पूछ रहे हैं। Consume it at right amount, like in daily basis. Then we have milk, which we already consume and which is provided in our milk also 2 times a day. Then we have made fish, poultry, which are नहीं आप ये क्या है जो बनाया है? ग्रामीणी क्यों बनाया है? सरल क्यों बनाया है? रेक्टेंगुलर क्यों बनाया है? दिस इज द क्वेश्चन। अपने डिस्प्ले बताइए किस प्रोग्राम के लिए? तो मेरा क्वेश्चन तो यही है कि पिरामिड क्यों है और टॉप क्या इंडिकेट करता है और क्या इंडिकेट करता है? The bottom indicates that we should consume it at high amount, and on top we should consume it at very less amount and on monthly basis. And that's what this triangular shape is showing. That's why it's pyramid. That's the answer. you are saying we need to consume more pasta, bread and cereal. Yes. Cereal, grains, and these are more, they give more minerals and vitamins, and fruits gives our natural sugar. नहीं ये जो आपने लिखा है ब्रेड सीरियल ये तो अंडरस्टूड है। ये पास्ता पूछ रहे हैं सर, पास्ता तो आज हम कई बार जब फूड में इंक्लूड करते हैं कि रोजाना पास्ता चाहिए नहीं मिलेगा। अच्छा पास्ता मैं पास्ता आपने बनाई थी आपकी हाथ वाला आ रहा है वो बात करें। नहीं आप कहिए जो कहना चाहते हैं, आप सीरियल को कंज्यूम कराना चाहते हैं, पास्ता रिफाइंड ज्यादा नहीं है, तो इसको बेटर अवॉइड करके यहाँ पे दिक्कत ये रोटी वो ज्यादा था। अच्छा Aditya L1 satellite model, which was launched only recently, 2 September 2023. I made आदित्य एल1 बनाया Yes. क्या क्या पर्पस है कि हम रियल आदित्य एल1 का अर्थ का क्रॉस कर लिया है 10 सितंबर को। कौन सी ऑर्बिट में रखा जाएगा? कहाँ जाके ये स्टेशन होगा? L1 पॉइंट
क्या इससे पहले और कोई कंट्री गई है सन के साथ एक्सप्लोर करने? और जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंस्टीट्यूट है, कौन सा इंडिया का है जो जा रहा है वहाँ पे? Indian Space Research Organization, which was launched from Satish Dhawan Space Center, Sriharikota, Andhra Pradesh. PCM 5 से सर हमने है ना ट्यूब बॉक्स बनाए जिसमें इधर तो जैसे 15 का ट्यूब है वो आएगा, जिसे हम राउंड करेंगे ना इसको फिर तो 11 से 20 तक की ट्यूब्स बनाए। कोई सही है जिनका इसमें क्यों मारे? नहीं डबल 3 एक बार जैसे वर्क करके किसी भी नंबर के क्यूब करके बता देंगे। तो आपको कितने डिजिट्स सबका बता ये 11 से 20 तक डिजिट्स का है। अच्छा, एक बात, ये क्या डिजिटल भी बन सकता है कि हम एक बटन दबाएं वो गोल होके चला जाए? हाँ सर, दो लाइट बॉक्स स्मार्ट लोग होते हैं वो भी तो काम करते हैं इसमें। PSC ability and here we are presenting the model of vitamins, how we can get vitamins, and many people are not aware how to get vitamins and vitamin deficiency it is missed. So here we are presenting how to get and what are the sources of this vitamin. चलिए विटामिन डी का सोर्स बताइए। Vitamin D sources cheese, eggs, mushrooms, and obviously veg sources sunlight. Anything you want to explain? इसमें विटामिन B12 के सोर्स बताइए तो आज देखना तो मीट और फिश What is the digital marketing? सबसे पहला कंसर्न हमारे यहाँ क्लियर होना चाहिए कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। यहाँ पर कुछ लोग इसको सेल्स से रिलेटेड समझते हैं, क्या मार्केटिंग करनी होगी, सेल्स कुछ बेचना है क्या? ध्यान दीजिएगा, डिजिटल मार्केटिंग सेल्स नहीं है। यहाँ पर हमें कुछ भी चीज को बेचना नहीं होता है। ब्रांड अवेयरनेस हमें यहाँ पे करनी होती है। फैकल्टी मेंबर्स जो सेशन को देख रहे हैं समझते हैं जब ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है कि आप कैसे अपने आप को एक ब्रांड के रूप में निकाल के लेके आते हैं, और स्टूडेंट्स जो ये देखें कि मुझे इसमें कैरियर बनाना चाहिए या मुझे पता होना चाहिए कि ये क्या चीज है जिससे मैं इसमें कैरियर बना सकूं। क्योंकि यहाँ पर एक सबसे अच्छी बात है, स्ट्रीम का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जरूर नहीं इसमें बीटेक किया हो, जरूर नहीं कि उसने एमसी किया हो, अगर वो आर्ट्स वाला है तो वो भी इस चीज को कर सकता है। मार्केटिंग इज नॉट एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग इज नॉट प्रमोशन, मार्केटिंग और कम्युनिकेटिंग राइट मैसेज टू राइट पीपुल यूजिंग राइट चैनल्स। सही मैसेज को सही लोगों तक सही तरीके से पहुंचाना ही आपका मार्केटिंग होता है। सेल हमें यहाँ पे नहीं करनी होती है, सेल्स हमें यहाँ पे नहीं करनी होती है। डिजिटल मार्केटिंग के अलावा डिजिटल प्लेटफॉर्म लाइक अ वेबसाइट, ब्लॉग, सोशल मीडिया, मोबाइल मार्केटिंग एंड टारगेट ऑडियंस। यहाँ पर ये एक शब्द हमारे पास निकल के आ रहा है, व्हाट इज द टारगेट ऑडियंस। आप एक जनरली अगर कोई मुझे बता सकता है टारगेट ऑडियंस क्या होती है, आप ही के एग्जाम्पल में आप ही कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बारे में उसको समझा के व्हाट इज द टारगेट ऑडियंस। डिजिटल मार्केटिंग में टारगेट ऑडियंस का अहम रोल है। कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो उसमें टारगेट ऑडियंस का अहम रोल है। और ध्यान दीजिएगा, टारगेट ऑडियंस, हैव यू एनी आइडिया? एक ग्रुप को टारगेट करते हैं, अगर हम प्रोडक्ट लगाने तो स्टूडेंट्स को टारगेट करेंगे उनके रिगार्डिंग मार्केटिंग करेंगे। जैसे मॉम को ब्रांड्स है तो उसमें मदर और चाइल्ड के प्रोडक्ट्स निकाले जाते हैं उनकी हेल्थ के लिए और स्किन केयर के लिए, तो इस हिसाब से ही मार्केटिंग की जाती है उसमें। तो ये टारगेट ऑडियंस हमारे मॉम और चिल्ड्रन के लिए। बहुत बढ़िया, नाम क्या है आपका?
टारगेट ऑडियंस का पता नहीं है। पैसेंस वाला तो आगे रखना चाहिए। टारगेट ऑडियंस का पता नहीं है। एक्चुअली हम लोग गलती क्या करते हैं, जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस को स्टार्ट कर दिया, प्रोडक्ट भी आपने बना दिया, और अगर आप उसका टारगेट ऑडियंस पहले डिसाइड नहीं किया है तो गारंटेड है 100% आपका प्रोडक्ट फेल होने वाला है। ध्यान दीजिएगा, दो तरीके के लोग काम करते हैं। पहले टारगेट ऑडियंस की अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो मेरा जो प्रोडक्ट है वो कहाँ पे सेल होगा, किसके लिए यूजफुल है। मैडम ने कहा कि सेकेंडरी वाला है, तो टारगेट ऑडियंस अगर आपने डिसाइड नहीं किया, जब यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी, व्हाट इज योर यूएसपी, उस समय ये डिसाइड कर लिया गया था कि मेरा टारगेट ऑडियंस कौन है, मुझे किन लोगों को टारगेट करना है। ये उसी दिन डिसाइड हो गया था। उसके आधार पर ये किया गया था कि यार अगर मेरा वुमन यूनिवर्सिटी है तो मेरा टारगेट है वुमेन्स, गर्ल्स, राइट। मेरा टारगेट ऑडियंस है यहाँ के लोकल क्षेत्र के लोग आएंगे या मुझे बाहर से इनको कन्विंस करके इस चीज के बारे में बताना है। आपने फर्स्ट डे टारगेट ऑडियंस अगर डिसाइड किया था तो आप उसी के अनुसार अपनी मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं। और अगर आप विदाउट टारगेट ऑडियंस के आप स्टार्ट कर देते हैं बिना कुछ समझे, तो आपका मैटर फेल हो जाएगा। वहां पर डिजिटल मार्केटिंग जो लास्ट वाला हमारा जो पॉइंट है, टू रीच टारगेट ऑडियंस। हम लोग जो आगे बढ़ने वाले सोशल मीडिया के थ्रू कैसे हम लोग प्रमोट करेंगे। Engineers work in many different and diverse specialization of their fields, but they all attempt to try to solve the various problems of us by making different applications and apps which are helpful for us. Participating in the refinement of petroleum production, biomolecular fermentation are the roles of chemical engineers. Under the category of education and methodology, I am going to represent our PPT on the dark side of technology, the major concept is cybercrime. Cybercrime या फिर तो कंप्यूटर ओरिएंटेड क्राइम, एक ऐसा क्राइम है जिसमें कंप्यूटर और कंप्यूटर नेटवर्क दोनों ही इंक्लूड होते हैं। साइबर क्राइम एक ऐसा क्राइम है जिसमें कंप्यूटर एक व्हीकल के लिए यूज होता है अपने क्राइम्स और फ्रॉड और थ्रेट। साइबर क्राइम एक बहुत ही बड़े स्तर पे अपने स्पेशलाइज्ड टूल्स और टेक्नोलॉजी के थ्रू अपने क्राइम्स को एग्जीक्यूट करते हैं। सम ऑफ द टूल्स मैलवेयर, फिशिंग हिट्स, एक्सपर्ट इंजेक्शन टूल एंड रैंसमवेयर। टारगेट साइबर क्राइम क्रिमिनल्स अपने टारगेट में डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, वो किसी को भी अपना टारगेट बना सकते हैं। आजकल के टाइम पर कोई भी साइबर क्राइम से सेफ नहीं है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो। मोटिव्स साइबर क्रिमिनल्स के बहुत से मोटिव्स हो सकते हैं क्राइम्स करने के, लाइक फाइनेंशियल गेन, सीकिंग प्रॉपर्टीज एंड रिवेंज। फ्यूचर ऑफ साइबर क्राइम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के थ्रू साइबर क्राइम्स करना अपने डेवलपिंग टाइम में अपनी स्ट्रेटजीज को एग्जीक्यूट करना और भी इजी हो गया है, और दिन के समय के साथ ही इनको डिटेक्ट कर पाना उतना ही मुश्किल। Faculty of Education and Methodology and Department of Science and Technology. Today I am going to present a piece about solar eclipse. A solar eclipse occurs when a moon is between the sun and the earth, and the shadow sometimes appear and sometimes not appear at every location. Part 4 solar eclipse. First, partial solar eclipse. It happens when the moon partially comes in front of the sun. Second, the annual solar eclipse. The annual solar eclipse is also known as annular. It is beyond the hour. Here the moon comes in front of the sun, but not
is the first high-level programming language. And it's a really easy question. I got to include who raises the hand first, A or B? B? Okay, fine. So B or T, we get an opportunity to answer this question. What's your answer? C. Sorry? C. The correct answer is C only, botany. So you have to answer A, B, C. Either you. Okay, so what's the answer? Options you are supposed to mention A, B, C or D. Don't get confused. What is your answer? होटल कहाँ रह गई थी? थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसा कुछ सीधी बोला कि लोगों की जेब काट रही थी। हाँ तो टाइम ही नहीं क्या है? और बता बाकी सब काम पे हैं। लोग आगे नहीं और सुना लगा के। हाँ सही बात है। बढ़िया। ये बैठ पा रही थी नीचे से। यहाँ वही बैकवर्ड देखना उसमें हो गया। बस नहीं। I know that सबको पता है कि तुम झूठ का सच्चा सच्चा तो आपकी मर्जी सही है। तो ये बात भी सही है। अब ये तो मेरा पेशा है। I'm just being professional। आइए मैडम। और मैडम जी आप आगे मैंने तो सुना कि लोग टाइम पे बैठा क्यों होते हैं? अरे आपकी बात तो सही है। अरे आपकी बात तो सही है लेकिन आप भूल गए क्या? आज 15 अगस्त की 1000 था स्कूल में। मंदिर भी हमेशा की तरह लेट हो गए। इस वजह से मुझे भी थोड़ा रुकना पड़ा। और आपसे बताओ कैसे चल रहा है? अरे मैडम जी जिन नेताओं को आप बुला करते हो ना उनकी लाइन लगी रहती है हमारे घर के बाद। लेकिन आप ये सब बातें नहीं समझोगी क्योंकि ये सब बिजनेस के फंडे हैं। माइंड योर लैंग्वेज प्लीज। आपको जैसा लग रहा है ना वैसी बात नहीं है। आपके जैसे बिजनेसमैन मेरे हाथों से बड़े निकल गए और आज भी मुझे याद करते हैं। पता नहीं टाइम हो गया आई नहीं अभी तक। हेलो और बल्कि मैडम कैसी
अच्छा, तुम्हें पता है तुम आज जिस ऊंचाई पे खड़ी हो ना, उसकी लिए उन्हीं 50 कोटि इंजीनियर्स ने रखी है। तुम्हारे अकेले का काम नहीं है ये। तुम आज जो यहाँ खड़े होकर अपने सक्सेस की रीतें यहाँ खड़ी हो ना, उसमें उतना ही हिस्सा 50 इंजीनियर्स का भी है जितना कि तुम्हारा। अरे हम लोगों को ये लगता है इंजीनियरिंग करना बाहर में घूमने जितना बराबर है, लेकिन वो बाहर की ज्योग्राफिक पार्टी की कोई नहीं जानता है इंजीनियर के अलावा। नामुमकिन काम को मुमकिन करने के पीछे और इंजीनियर का ही हाथ होता है। बहती हवा बहती पानी में से बिजली किसने बनाई? हम इंजीनियर्स ने बनाई। समुद्र की गहराई में से तेल किसने खोज निकाला? हम इंजीनियर्स ने निकाला और आज भी निकाल रहे हैं। तुम लोगों को नहीं समझ आएगी ये बातें। अरे क्या बताओ मैं तुम लोगों को इंजीनियर्स के बारे में, जितनी बात बताऊं उतनी कम है। आपकी हर एक सोच को सत्य बदलने का जुनून, जज्बा और वो काबिलियत कौन रखता है? हम इंजीनियर से तो रखते हैं। आसमान को छूटी, बातों को छूटी, माटी किसने बनाई? हम इंजीनियर से बनाई। आप अभी भी देख लो इसी की ठंडी हवा, ये भी हम इंजीनियर से बनाई है। इंजीनियर साहब आपको सलाम। अरे कोई भी प्रोफेशन छोटा नहीं होगा, बस सबका अपना अपना किरदार होता है सोसाइटी में। फर्क इतना है कि आप बड़े के आगे अपना किरदार निभाते हो, हम इंजीनियर बड़े के पीछे का किरदार निभाते हैं। बाकी इम्पोर्टेंट सभी प्रोफेशन रखते हैं सोसाइटी में। थैंक यू।